discuss lecture 3rd of thermodynamics. So in this lecture, we'll discuss internal energy and we'll discuss first law of thermodynamics. Basically, in this lecture, we will apply law of thermodynamics to different thermodynamic processes, which we have already studied. So let's start the topic. The first thing is we'll discuss internal energy. पहले हम internal energy को discuss करेंगे इस lecture में, isn't it? इस लेक्चर में पहले हम इंटरनल एनर्जी को डिस्कस करेंगे. तो व्हाट्स मीन्ड बाय इंटरनल एनर्जी? देखो, हमारे पास कोई सिस्टम जो है, कोई भी सिस्टम अगर हमारे पास होगा, कोई भी सिस्टम अगर हमारे पास होगा, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, isn't it? फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सिस्टम है, दिस सिस्टम. सो दिस सिस्टम कंटेन्स मॉलिक्यूल्स. लेट मी से इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर दीज टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स. हमें बताना है इन मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इन दीज मॉलिक्यूल्स. तो इनमें से अगर मैं एक मॉलिक्यूल को बाहर निकालूंगा, दिस मॉलिक्यूल कैन ट्रांसलेट इन एक्स डायरेक्शन, इट कैन ट्रांसलेट इन वाई डायरेक्शन, एंड इट कैन ट्रांसलेट इन जेड डायरेक्शन, isn't it? So means these molecules, they possess translational degree of freedom. Are you getting me? X, Y and Z, they possess translational degree of freedom. और इनके साथ जो associated energy होगी, that will be translational energy. So in molecules में translational energy होगी, E translational, isn't it? So similarly, ये जो हमारा molecule है, it is bonded by a bond. तो इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, therefore one more type of energy is associated, that's called energy of rotation. Similarly, ये जो molecule है, like that of spring, it can vibrate. You know that a molecule can vibrate along this bond like that of spring. तो यहाँ पे energy of rotation भी possible है. Sorry, energy of vibration. ये जो तीन forms of energy हैं, these are basically kinetic energy. तो अगर ये मॉलिक्यूल रेस्ट पे होंगे तो इनके पास एक और एनर्जी होगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हो सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मींस मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट. So electronic transition is also possible, isn't it? Means there is also possibility of energy that is known as energy of electronic transition. Energy of electronic transition या electronic energy. Sum of all these forms of energy, जितने भी energy किसी molecule को associate होंगे in a system, that's called the internal energy. So what's internal energy? It's the sum of all forms of energy, sum of all types of energies, sum of all types of energies associated with the system. Energy is present in the system. कोई भी सिस्टम अगर हमारे पास होगा, उसमें जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होंगे, उनका सम अगर लेंगे, दैट विल बी इंटरनल एनर्जी. इस इंटरनल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं और समटाइम्स वी डिनोट इट बाय यू. तो आपकी मर्जी है ई से डिनोट करो और यू से डिनोट करो. लेट मी डिनोट इट बाय ई. सो ये जो इंटरनल एनर्जी है, इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. So kinetic energy में basically हम लिख सकते हैं its energy of translation plus its energy of rotation plus its energy of vibration plus यहाँ पे हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस बॉन्ड एसोसिएशन. अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, देन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट्स एनर्जी ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन, दैट्स बीडी एनर्जी, isn't it? These are all forms of energies which may be associated with the system. The sum of all these forms of energies, that is known as internal energy. So what is internal energy? It's the sum of all forms of energies present in the system, that is known as internal energy. Clear हुआ internal energy क्या होता है? बताओ मुझे, ये बात क्लियर हुई? What's internal energy? What's internal energy? ये बात आपको क्लियर हुई? कोई भी सिस्टम होगा, उसमें जो जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जीज एसोसिएट होंगे, they are known as that, the sum of all those is known as internal energy, isn't it? now देखो, ये जो सिस्टम मेरे पास है, ये जो सिस्टम मेरे पास, हाँ वेरी गुड. now देखो, ये जो सिस्टम मेरे पास है,
तो लेट मी से इस सिस्टम के पास जो भी मॉलिक्यूल्स इसमें है, these are the molecules of the substance present in it. For example, molecules of the key. Let us say इनके पास जो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है, that's E1 और E initial, let us say EI. तो अगर मैं इस सिस्टम को यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, मतलब यहाँ से हीट प्रोवाइड करूंगा, मतलब यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, सो व्हाट विल हैपन? अगर मैं यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मतलब मैं यहाँ से इनको एनर्जी दूंगा, सो व्हाट विल हैपन? So basically what will happen? Kinetic energy will increase, मतलब energy of translation will increase, energy of vibration will increase, energy of rotation will increase. Basically ये सारी energies जो है ये increase हो जाएंगी, मतलब a molecule will come into a new state where its energy will be E final. तो यहाँ पे जो internal energy है it will depend upon initial and final status. तो मैं कहूँगा internal energy जो यहाँ पे है, that is change in internal energy del E, it will be equal to E final minus E initial, isn't it? E final minus E initial. लास्ट पे आपकी क्या एनर्जी होगी और इनिशियली आपकी क्या एनर्जी थी सिस्टम की, दैट इज डेल E, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो केमिस्ट्री में एक्चुअली वी कैन नॉट डिटरमाइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी. Absolute value cannot be determined. Absolute value of internal energy cannot be determined. Absolute value of E cannot be determined. Why? Because it's a state function, cannot be determined. But we chemists are fortunate enough. We need only change in internal energy, so we determine change in internal energy. That's E final minus E initial. So what is change in internal energy? It is E final minus बड़ा बड़ा लिखूंगा, कोई बात नहीं. What is change in internal energy? It is E final minus E initial. Clear? What is change in internal energy? It is E final minus E initial. ये बात क्लियर हुई? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो डेल ई है, इट्स इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल. मींस इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम. It depends upon the initial and final states. Therefore, we can conclude that your internal energy is a state function. Internal energy is a state function. It does not depend how you brought about this change. It does not depend upon the path followed. It only depends upon state function, initial and final states. Depends upon initial and final states. That's why internal energy is a state function and it's equal to E final minus E initial. Clear? यहाँ तक बात क्लियर. ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है. तो अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन होगी, इसको आप नोट डाउन करो. अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन होगी, वी नो दैट इन अ केमिकल रिएक्शन वी हैव रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स के साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी दैट विल बी इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी दैट विल बी इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. So in a chemical reaction, how we are going to determine change in internal energy? See, मेरे पास कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, A gives B. This is a chemical reaction. So this is my reactant. ये क्या है? ये reactant है. और ये क्या है? ये product है, isn't it? तो reactant से आप product बनाते हो. Initially इसकी energy that I will represent that as ER, internal energy of reactant. और जब मेरे पास product बनेगा, इसकी internal energy होगी EP. तो अगर यहाँ पे आप change in internal energy लिखोगे del E, it will be equal to EP minus ER. EP minus ER. Internal energy of products will be greater than that of the reactants. In this case, we have the relation. This will be the final internal energy, and this will be the initial internal energy. That's why I write over here internal energy is equal to EP minus ER. Now, two cases may arise. Case number first. If EP is greater than that of ER, if EP is greater than that of ER, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू बड़ा होगा, then this del E will come out to be positive. Del E will be positive. Now case number second will arise. Case number second, if EP is less than that of ER, isn't it? If ER is greater than that of EP, मतलब नेगेटिव वाली टर्म ज्यादा है, that is del E will have negative side. So internal energy can have both positive and negative sides depending upon internal energy of final state and internal energy of initial state. Clear? ये बात क्लियर हुई? Now how we can determine this del E? इस del E को हम कैसे निकालेंगे? How we are going to determine del? Change in internal energy is determined with the help of an instrument called Bohm calorimeter. बहुत ही important है, Bohm calorimeter. So Bohm calorimeter से हम internal energy को determine करते हैं.
can be determined, change in internal energy can be determined with the help of Baum calorimeter. जो बॉम कैलोरीमीटर में हम रिएक्शंस करते हैं, बॉम कैलोरीमीटर में जब भी हम कोई रिएक्शंस करेंगे, दोज रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को, बॉम कैलोरीमीटर में रिएक्शंस आर कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. थर्मोकेमिस्ट्री जब उठाएंगे सेकंड पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वहां पे इसका डिस्कशन करेंगे हाउ वी कैन डिटरमाइन कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यहां तक बात क्लियर हुई? सब बच्चे बोलो यहाँ तक इंटरनल एनर्जी की बात क्लियर हुई. इंटरनल एनर्जी क्या होता है? बेसिकली सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम. So what are those forms? Potential energy, kinetic energy, energy of rotation, energy of translation, energy of vibration, energy of electronic energy. तो इन सब का सम जो होता है, that's internal energy. It's a state function. It depends upon initial and final status. Therefore, internal energy will be equal to E2 minus E1 or EP minus ER or E final minus E initial. So internal energy can have both positive values as well as negative values depending upon energy of product ज़्यादा है या energy of reactant ज़्यादा. क्लियर? लेट मी नो यहां तक आपको बात क्लियर होगी. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आई होप यहां तक बात क्लियर हुई होगी. इजंट इट? प्रीवियस स्लाइड देखो, प्रीवियस स्लाइड, दिस इज प्रीवियस स्लाइड. तो देखो आप लोग प्रीवियस स्लाइड, हाँ करो कॉपी. उसके बाद मुझे लिखो, वहां पे लिखो डन. तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं आपके एग्जाम में फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लेटर ऑन वी विल सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए. हो गया? हाँ, वेरी गुड. नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे सो इट इज आवर, इसको हम लिख सकते हैं FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फ्लोट, FLOT means first law of thermodynamics. So point number 1 लिखो for first law of thermodynamics. This law was given by Robert Meyer and Helmholtz. It was given by Robert Meyer. अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है क्वेश्चन में आएगा. First law of thermodynamics was given by, it was given by Robert Meyer and Helmholtz. इसकी हमें एक इक्वेशन भी आएगी आगे, Helmholtz gives free energy equation. It was given by Robert Meyer and Helmholtz. This is a very important point. अपने आप में बहुत ही important point है, कभी पूछा जाएगा. This law is also known as law of conservation of energy. It is known as law of conservation of energy. We know this. ये बात हमें पता है. Law of conservation of energy ये सबको पता है. It's known as law of conservation of energy. Now the statement of this law is total energy of the universe remains constant. According to this law, total energy of universe remains constant. Total energy of universe remains constant. Universe remains constant. What does this mean? What does this mean? मतलब हमारा universe जो है, it's made up of two parts, system and surroundings. It's made up of system and surroundings. System and surroundings. So basically, exchange of energy will take place between the system and the surroundings, and overall the energy will remain constant. Overall, the energy of the universe, it will remain conserved. It will remain constant. तो अगर हम थोड़ा सा इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो देखो यहाँ से हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बना सकते हैं. तो सी ओवर हियर मेरे पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. तो बता इन मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगी, व्हाट इज दैट एनर्जी? दैट्स इंटरनल एनर्जी, इजंट इट? दैट्स इंटरनल एनर्जी. लेट अस से इट्स E1. नाउ आई एम सप्लाइंग क्यू क्वांटिटीज ऑफ हीट टू द सिस्टम. अगर मैं क्यू क्वांटिटीज ऑफ हीट सप्लाई करूंगा, व्हाट विल हैपन? इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज. हाउ? बिकॉज़ काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, rotational energy will increase, translational energy will increase, vibrational energy will increase. As a result, overall we can say total energy will increase. That's our
that is this energy, that's internal energy, means final internal energy will be E2. तो मुझे बता, जब इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इस स्टेट से मेरा ये सिस्टम इस स्टेट तक पहुंच गया, isn't it? From initial state to final state, let the volume at this stage is V1 and the volume at this stage is V2. तो बताओ मुझे यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन हुआ मतलब वर्क डन हुआ, isn't it? जो मैंने हीट सप्लाई की, जो मैंने क्यूब क्वांटिटीज ऑफ हीट सप्लाई की, इसने दो काम किए यहाँ पे, एक इसने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया और साथ साथ इसने एक्सपेंशन वर्क की, isn't it? जो मैंने हीट क्यूब क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई की सिस्टम को, इसने दो काम किया कि एक तो इसने काम किया, इसने इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज किया, नंबर सेकंड इसने यहाँ पे एक वर्क किया, दिस इज नोन एज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। क्लियर? मतलब जो मैं यहाँ पे क्यूब क्वांटिटीज ऑफ हीट सप्लाई करता हूँ, that does two things. Number first, that increase the internal energy of the system. Internal energy कहाँ से increase हुई, E1 to E2, मतलब यहाँ से इंटरनल एनर्जी जो है डेल ई दैट इंक्रीज हुई, प्लस यहाँ पे वर्क हुई, कौन सी वर्क, दैट्स वर्क ऑफ एक्सपेंशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन मतलब यहाँ पे W, isn't it? तो बस यहाँ से आप इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हो, तो आप यहाँ से इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हो, डेल ई इज इक्वल टू, डेल ई को यहाँ रखो, W को यहाँ ला, Q minus W, isn't it? Del E is equal to Q minus W, isn't it? तो यहाँ पे आप W को आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे या नेगेटिव वैल्यू लोगे, इट विल डिपेंड। तो देखो ये जो वर्क है, दिस इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो मुझे बता, जब भी एक्सपेंशन होता है तो वर्क का साइन क्या लेते हो, माइनस पी डेल वी, मतलब नेगेटिव साइन ऑफ वर्क, लास्ट लेक्चर पे बताया। तो मतलब ये जो वर्क है, दिस इज माइनस पी डेल वी, isn't it? ये जो वर्क है, इट्स माइनस पी डेल वी, isn't it? मतलब इस माइनस को यहाँ ला, दिस विल बिकम Q प्लस W। अब सब बच्चों को समझ आया व्हाई दिस इज माइनस, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेंशन वर्क होता है, isn't it? तो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। सबको समझ आया? डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W, सबको समझ में आ गया? सबको समझ आ गया ये डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W कहाँ से आया? बताओ मुझे, सबको समझ आ गया डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू कहाँ से आ गया? हाँ, एक्चुअली यहाँ पे जो W है, इट्स वर्क ऑफ एक्सपेंशन। So we know that in thermodynamics, work done is negative when it's expansion, isn't it? When work is done by the system on the surroundings, यहाँ पे नेगेटिव है, del E को यहाँ रखो, W को यहाँ ले जाओ, it will be del E is equal to Q plus W, isn't it? So this is the mathematical form of first law of thermodynamics। ये बहुत ही important है, मैथमेटिकल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कंप्रेशन की बात करेंगे, इट विल बी Q माइनस W। तो जनरली हम लिखेंगे इन एनी प्रोसेस डेल वी ई विल बी इक्वल टू Q प्लस माइनस W। तो इस W को आप रिप्लेस करोगे बाय PdV, बिकॉज W इज इक्वल टू PdV, isn't it? W इज इक्वल टू PdV। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करूंगा, पुट द वैल्यूज ऑफ W एंड Q विद प्रॉपर साइन, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी वर्क हो रही है, कहाँ से हो रही है, दैट्स व्हाट इज नोन एज बाय प्रॉपर साइन। क्लियर हुआ? इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट पेज पे जाकर। क्लियर हुआ? सब बच्चे मुझे बोलो क्लियर हुआ ये? तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, तो आप स्क्रीन शॉट ले लो, विल डिस्कस कंक्लूजन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, वेरी गुड। विल डिस्कस कंक्लूजन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब इट्स एप्लीकेशन, बेसिकली इसके रिलेटेड हमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, isn't it? तो लिखो कंक्लूजन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Conclusions of FLOT, first law of thermodynamics, means we will apply this law to different form। तो नंबर फर्स्ट फॉर्म लिखो, किस पे अप्लाई करेंगे? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हमारे पास प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो हम फर्स्ट लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे, isn't it? तो मुझे बताओ, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट्स द कंडीशन, del T is equal to 0, isn't it? For isothermal process, del T is equal to 0, isn't it?
तो देखो जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है, इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमने गैस स्टेट में देखा था, del E is directly proportional to temperature. del E is equal to T/2 kT. It's a function of temperature. तो बेसिकली अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो वी कैन से del E will be equal to 0. del E will be equal to 0. Why? Because जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट रहना है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस del T is equal to 0, del E is also equal to 0. Therefore अप्लाई करेंगे FLOT। FLOT अप्लाई करेंगे। व्हाट इज FLOT? FLOT is del E is equal to Q plus W, isn't it? Del E is equal to Q plus W. Now for isothermal process, del E is equal to 0. This is equal to 0. So I can write 0 is equal to Q plus W. So I'll write Q is equal to W. Q is equal to minus W, isn't it? Q is equal to minus W. So Q को आप यहाँ लाओ, isn't it? या W को यहाँ लाओ। Q is equal to minus W और minus Q is equal to W. एक ही बात है, जैसे आप चाहोगे वैसे लिख सकते। This is for isothermal process. First law for isothermal process. This is FLOT for isothermal process. For isothermal process. Isothermal process. तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बता मुझे इसका मतलब क्या है। नेगेटिव साइन मीन्स हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। हीट लॉस्ट, यहाँ पे आप दो इक्वेशंस बना सकते हो। माइनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू इज इक्वल टू आर प्लस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, इजंट इट? दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप क्यू को यहाँ रखोगे, डब्ल्यू को यहाँ लाओ, इट विल बिकम प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इजंट इट? तो दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे पॉसिबल है। देखो यहाँ से क्यू को यहाँ रखो, डब्ल्यू को यहाँ लाओ, मतलब क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू को यहाँ रखो, क्यू को यहाँ लाओ, मतलब डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस क्यू। तो दो चीजें यहाँ से निकलती। बट आर दो टू थिंग्स, उनका डिस्कशन होगा। तो देखो नंबर फर्स्ट थिंग इज, जब भी आपका हीट पॉजिटिव होगा दैट्स हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर हीट नेगेटिव होगा दैट्स हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम। नंबर फर्स्ट थिंग इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। हीट एब्जॉर्ब्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाय द सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम किसके बराबर है? इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू मीन्स कौन सी वर्क? माइनस डब्ल्यू मीन्स एक्सपेंशन वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम। माइनस डब्ल्यू का मतलब है जो यहाँ पे आपका गैस पार्टिकल्स थे, तो इनका वॉल्यूम एक्चुअली इंक्रीज हो गया, मतलब एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कल हमने डिस्कस किया था। सो व्हेनेवर हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो यहाँ पे एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन मतलब वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क डन बाय द सिस्टम, किसको ये बात समझ में आ गई? तो अगर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, माइनस क्यू इज इक्वल टू, दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, दैट इज प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट कंडीशन देखो, अगर माइनस क्यू मतलब हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, प्लस डब्ल्यू मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम और हीट evolved बाय द सिस्टम, हीट evolved बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, बता मुझे किसके बराबर होगा? हीट evolved बाय द सिस्टम, दिस इज हीट evolved बाय द सिस्टम, किसके बराबर होगा? प्लस डब्ल्यू। प्लस डब्ल्यू मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम, isn't it? Is equal to work done on the system, is equal to work done on the system. That's why last वाला lecture जो है that's very very important. Clear हुई ये दो बातें? These are very very important points, बहुत ही important points है। So according to first law of thermodynamics, for isothermal process this is correct, this is again correct, दोनों बातें correct है, isn't it? बता मुझे ये बात क्लियर हुई सबको? ये बात क्लियर हुई सबको? जब भी आपका W माइनस होगा मींस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब भी W पॉजिटिव होगा वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब भी W माइनस होगा वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जब भी W पॉजिटिव होगा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। हाँ वेरी गुड। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा है वो पहले जाके कल का लेक्चर देखेगा, उसमें हमने डिस्कस किया था इस साइन कन्वेंशन। जब भी हमारे पास W पॉजिटिव होगा मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर W नेगेटिव होगा
मीन्स वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे कंप्रेशन होता है, isn't it? दोनों बातें हो सकती, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन करो, विल डिस्कस आइसोकोरिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है, तो लास्ट पे उस क्वेश्चन को देखेंगे। हो गया ये? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई आपको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मे बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट इज, this is correct statement, this is also correct statement. Why? Because this statement means minus q is equal to plus w. तो दोनों बातें सही है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, isn't it? बेसिकली अगर ये आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ये इक्वेशन बनानी है, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ FLOT फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो नंबर सेकंड प्रोसेस जो मेरे पास है दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए FLOT को डिस्कस करेंगे, FLOT को आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डिस्कस करेंगे। FLOT फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। What do you mean by isocoric process? That's why lecture first is important. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम इज कांस्टेंट मींस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस del V is equal to C, isn't it? For isochoric process del V is equal to C, isn't it? Or we can say V1 is equal to V2 is equal to V, isn't it? Del V is equal to 0. This is meant by del V is equal to 0. Volume is constant. Now we know that work done किसके बराबर होता है? W is equal to minus P del V, isn't it? So what is del V for isochoric process? It is 0 minus P into 0. So therefore work done for isochoric process it is equal to 0. बस सब्स्टिट्यूट करो FLOT में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज दैट del E is equal to Q plus W. तो W जो है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इट इज 0, therefore del E is equal to Q, isn't it? Del E is equal to Q for isothermal process. Isothermal process में वॉल्यूम कांस्टेंट है, therefore we can write it QV. QV stands for at constant volume. So this is very important equation. This is important equation. What is important equation? Del E is equal to, or we can say QV is equal to del E. Heat absorbed at constant volume, it's equal to change in internal energy of the system. Heat absorbed by the system is equal to change in internal energy of the system. तो यहाँ पे लिखेंगे heat absorbed by the system at constant volume, at constant volume is equal to change in internal energy of the system, is equal to change in internal energy. मतलब अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे सिस्टम को हीट दोगे तो वहां वर्क डन नहीं होगा, वहां सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्लियर? तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन आगे हमें बहुत हेल्प करेगी, तो इस इक्वेशन को याद रखना। QV is equal to del E, QV is equal to del E, heat absorbed at constant volume, इस V का मतलब है at constant volume, it's equal to del, it's equal to del E. तो दिस इज हीट absorbed, it's equal to del E, change in internal energy। बताओ मुझे, अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज? नॉट टेल मी। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, अगर ये एब्जॉर्ब होगी तो आप मुझे बता, ये जो इंटरनल एनर्जी है क्या इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? हाँ, इट विल इंक्रीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सिमिलरली अगर मैं माइनस QV लिखूंगा, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, इट्स इक्वल टू डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है, isn't it? Isn't it? तो हम यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट? तो उस पॉइंट को यहाँ पे आप देखो। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट? हमने कंक्लूड किया जो हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम है दैट्स इक्वल टू del E चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मुझे बताओ व्हाट इज del E?
Is it a state function or path function? Del E is a state function. तो हीट को हमने कहा था एक्चुअली इट्स अ पाथ फंक्शन, बट यहाँ पे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्यू वी को डिफाइन करेंगे, so it's equal to internal energy. Internal energy is a state function, therefore QV does not depend upon path. QV does not depend upon path. QV does not depend upon path for isochoric process, isn't it? QV does not depend upon path for isochoric process. So this is very, very important. For isochoric process, QV does not depend upon path. Heat absorbed at constant volume. It does not depend upon path for isochoric process. Therefore, this is state function. QV is a state function. Clear? स्टार मार्क करो इस पॉइंट को स्टार मार्क करो, इस पॉइंट को स्टार मार्क करो यहाँ पे. दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. और ये भी इंपॉर्टेंट है. दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनको स्टार मार्क करके रखो. जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे वहां पे इनको स्टार मार्क करके रखो. बताओ मुझे ये बात क्लियर हुई? बताओ मुझे ये बात क्लियर हुई? QV is equal to del E. Del E is a state function. Therefore, QV does not depend upon the path followed. It's a state function. पर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे आप. हाँ, वेरी गुड. तो एडियाबैटिक प्रोसेस की बात, इसको एक दो बार आप ट्राई करना, बिकॉज थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो भूल जाते हैं, जल्दी ही इसको भूल जाते हैं. तो एक बार इन इक्वेशंस को आप फिर से ट्राई करना, डिराइव करने की कोशिश करना खुद से. तो हमारे पास एक और प्रोसेस है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस की. नंबर थर्ड इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस. तो बताओ मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस में व्हिच इज व्हाट थिंग इज इक्वल टू जीरो? Q इज इक्वल टू 0. बस अप्लाई करो FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, del E इज इक्वल टू Q प्लस W. बस यहाँ पे आपका Q जो है दैट्स इक्वल टू 0. therefore del E is equal to W, isn't it? Del E is equal to W. Del E is equal to W. What does this mean? What does this mean? So del E is equal to W means this is positive value of W over here. Work is done on the system. Increase in internal energy is equal to work done. So simply हम लिखेंगे increase in internal energy. Increase in internal energy मैं लिखूंगा del E is equal to work done. Is equal to work. Increase in internal energy is equal to work done. अब दो बातें हो सकती है. अगर आप इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करोगे तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम. अगर आप इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करोगे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लाइक दैट. क्लियर? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, बताओ मुझे वर्क क्या है? वर्क स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन. W इज अ पाथ फंक्शन. W इज अ पाथ फंक्शन. बट अगर मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, अगर मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसके लिए ये जो W है इट्स इक्वल टू del E. del E जो है इट्स अ स्टेट फंक्शन. It's a state function. Therefore, we can conclude that this W is independent upon path. It is not path function. It's not path function for a diabetic process. It is not path function for a diabetic process. Clear? ये बात बहुत ही important है. इस पे हमने कल क्वेश्चन किया था, I think. इस पे हमने कल क्वेश्चन किया. क्लियर हुई ये बात? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई. हाँ, it is not path function for adiabatic process. अगर मेरे पास adiabatic process है, then it is not path function. Why? Because we concluded that from first law of thermodynamics is that this W is equal to this W is equal to del E. Del E is a state function. Therefore, आपका W जो है for adiabatic process, it is not a path function. It does not depend upon the path. Clear? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई. Is it clear to all? क्लियर हुआ ये? जल्दी से बोलो ये बात क्लियर हो गई. नाउ फॉर साइक्लिक प्रोसेस बात करेंगे. साइक्लिक प्रोसेस की. हाँ, वेरी गुड. सब बच्चे बोलते रहो. तो बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस. बताओ मुझे साइक्लिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है? व्हाट इज जीरो इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस? हाँ, व्हाट इज जीरो इन केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस? ऑल स्टेट फंक्शंस आर इक्वल टू जीरो इन साइक्लिक. हाँ,
इन साइक्लिक प्रोसेस ऑल स्टेट फंक्शंस आर इक्वल टू 0। तो फर्स्ट लॉ में कौन सी स्टेट फंक्शन है? डेल ई। तो मैं कहूंगा वेरी गुड, ऑल स्टेट फंक्शन। तो फर्स्ट लॉ में हमारे पास डेल ई स्टेट फंक्शन है, देयरफॉर डेल ई इज इक्वल टू 0। del E is equal to 0 मतलब Q will be equal to W, isn't it? Because we know that del E is equal to Q plus W. Now Q is equal to 0, therefore minus Q is equal to plus W or plus Q is equal to minus W. एक ही बात है, दो में से जो भी आपका जी चाहे वो लिखो, isn't it? मतलब वही बात, work done by the system is equal to heat absorbed by the system. हाँ, सब बारीक प्रोसेस की बात करेंगे। इज इट क्लियर? इसको आप नोट डाउन करो, अगर ये क्लियर हुआ तो बता मुझे, ये बात क्लियर हुई, इसको नोट डाउन करो। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, अच्छा मुझे बताओ यहाँ सी ओवर हियर, यहाँ पे देखो, दिस इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय इज इक्वल टू 0, change in pressure is equal to 0, P is constant, del P is equal to 0, isn't it? अप्लाई करेंगे FLOT, first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics, del E is equal to Q plus W, isn't it? Del E is equal to Q plus W. What is this W equal to? It's equal to minus P dV. So this is P Q plus into minus P dV. बस थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, दिस विल बी Q minus P dV, isn't it? What is P dV? P dV, it is V2 minus V1. अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, मतलब मैं Q को यहाँ लाऊंगा, डेल E को यहाँ लाऊंगा, isn't it? This is del E. Del E is equal to Q minus P dV, isn't it? Del E is equal to Q minus P dV. तो यहाँ इस P dV को आप यहाँ ले जाओ, therefore Q is equal to del E. P dV को यहाँ ले जाओ, it will be plus P dV. बताओ मुझे ये प्रेस किस पे हो रही है? एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब P is constant. तो P is constant मतलब जो मैं हीट सप्लाई करता हूँ दैट्स एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं यहाँ पे इसको QP लिख सकता हूँ, isn't it? Heat supplied at constant pressure. Now what is del E equal to? What is del E equal to? Therefore QP is equal to, what is del E equal to? E2 minus E1, isn't it? What is P del V equal to? P into V2 minus V1, isn't it? P into V2 minus V1, P into V2 minus V1, isn't it? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो देखो, दिस इज E2 माइनस E1 into P into V2 is equal to PV2 minus प्लस into माइनस माइनस PV1। बस आप फाइनल कंडीशंस को एक साथ लाओ, फाइनल कंडीशंस को अलग करेंगे, इनिशियल कंडीशंस को अलग करेंगे, isn't it? फाइनल कंडीशंस को अलग करेंगे, इनिशियल कंडीशंस को अलग करेंगे। बस मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसकी डेरिवेशन भी आनी चाहिए आपको, सो दैट आपको याद रहेगा। E2 तो PdV PV2 को अलग लाओ, दैट इज PV2, माइनस का साइन यहाँ बाहर निकालो, तो यहाँ पे आएगा आपको E1 प्लस PV1, isn't it? तो व्हाट इज E2 प्लस PV2? E प्लस PV किसके बराबर होता है? बताओ मुझे, E प्लस PV किसके बराबर होता है? जिसको पता है वो बोलेगा। E प्लस PV किसके बराबर होता है? E plus PV, internal energy plus pressure volume work, it is equal to enthalpy of the system. तो ये जो टर्म है this is equal to H2 and ये जो टर्म है this is equal to H1 minus H1, where H2 is equal to E2 plus PV2 and H1 is equal to E1 plus PV1. So this thing is equal to your QP. This is very important generalization that we are going to get. देखो what generalization we are going to get over here. ये जो हमारे पास QP है it's equal to H2 minus H1, isn't it? So H2 minus H1, it is basically change in enthalpy, that's del H. So heat supplied at constant pressure, it's equal to change in enthalpy. तो अगर enthalpy को यहाँ पे define करोगे, enthalpy is the heat content of the system at constant pressure. Heat content of the system at constant pressure. Now tell me, this is a very very important equation. बहुत ही important equation है, बहुत ही important equation. दो इक्वेशंस यहाँ तक बनी है हमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करोगे इट विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी,
अगर हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे सप्लाई करोगे इट विल बी इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. दीज आर टू इंपॉर्टेंट इक्वेशंस व्हिच वी हैव डिराइव्ड टुडे. तो देखो यहाँ पे बताओ मुझे हीट क्या होता है. व्हाट इज हीट? हीट इज अ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन. नाउ टेल मी, इज हीट अ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन? Q is a state path function. Q is path function. Q is path function. तो अब मुझे बताओ व्हाट इज Q, व्हाट इज QP? QP क्या है? स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? हाँ, QP क्या है? स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? QP is equal to del H. Del H is a state function. So if del H is a state function, QP is independent upon path. It's independent upon path. Independent upon path. Question कैसे आएगा? Question आएगा for which of the following processes QP is independent upon path? It is isobaric process. For which of the following processes? For isobaric processes, यहाँ पे आप note down करो. For isobaric processes, for isobaric process, heat is independent upon path. Heat is independent upon path. It is not a path function. Heat is not a path function. We have verified it because heat is equal to QP is equal to del H, isn't it? तो दोनों इक्वेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इनकी नीड पड़ेगी हमें. तो ये जो इक्वेशन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. सो दिस नोट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है. क्लियर? आइसोबारिक प्रोसेस में हीट इज इंडिपेंडेंट अपॉन पाथ. So let us now see certain questions based on this concept. मुझे पहले बताइए यहाँ तक आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ तब जाके हम क्वेश्चंस करेंगे. सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ देन वी विल सॉल्व क्वेश्चंस, अदरवाइज ना. सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? टेल मी, सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? लेट मी नो ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ. यहाँ तक जो भी हमने पढ़ाया एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हाँ वेरी गुड रुकया जी. तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बाकी बच्चे भी जल्दी से बोलो सो दैट. हाँ वेरी गुड, very good. So next thing is we'll solve certain questions based on this concept. Now let us see the question. तो क्वेश्चन इसको देखते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अभी हमने इस क्वेश्चन को एक्चुअली डिस्कस किया है. हाँ वेरी गुड. बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V is constant, V is constant और del V is equal to 0. Heat absorbed by the system is equal to, यहाँ पे तो होना चाहिए, is equal to increase in internal energy of the system. Heat evolved by the system is equal to decrease in internal energy of the system. Both first and second, none of these. हाँ जल्दी से आंसर बता, आंसर्स आने लगे. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. बस एग्जाम में क्या करेंगे? फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, according to first law of thermodynamics, del E is equal to Q plus W, isn't it? Del E is equal to Q plus W. तो देखो ये मेरा जो है इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्यू बनेगा QV. वर्क डन इज इक्वल टू PdV. वॉल्यूम कांस्टेंट है, dV इज 0, वर्क डन इज 0. अगर वर्क डन 0 है del E इज इक्वल टू QV. अगर आप हीट को एब्जॉर्ब करोगे इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज. अगर आप हीट को सिस्टम से लॉस करोगे इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज. देयरफॉर बोथ A and B आर द करेक्ट आंसर. Isn't it? इस बात को हमने पहले ही डिस्कस किया. हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. सी दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एमएस 2018. एमएस 2018 में क्वेश्चन आया है द करेक्ट सेट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर. तो आपको बताना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है. हाँ इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ. करेक्ट सेट ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर. ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा बिकॉज इसको हमने कल डिस्कस किया है. तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप ग्रुप में देना, इजंट इट? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे ग्रुप में देना. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 में एम्स में आया है. बिकॉज हमने इस क्वेश्चन बिकॉज हमने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ा है, दैट्स व्हाई. हाँ प्रेशर एंड टेम्परेचर, वेरी गुड. जिन जिन बच्चों ने ये वाला आंसर दिया दैट्स करेक्ट.
Now tell me the answer of this question. This question has been asked in AIMS 2018. AIMS 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है. इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं. An ideal gas expands from 2 liters to 10 liters. मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है. V1 is equal to 2 liters and V2 is equal to 10 liters. Isn't it? Adiabatically मतलब Q is equal to 0. At a constant external pressure of 10 atmospheres, मतलब P is equal to 10 atm. The final change in internal energy, आपको निकालना है internal energy का final change. Internal energy मतलब del E. कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे? FLOT. According to FLOT, del E is equal to Q plus W. Isn't it? Q plus W. अब ये जो आपके पास W है, ये W किसके बराबर है? Tell me. It's Q minus P into V2 minus V1. Isn't it? तो यहाँ पे adiabatic process है, therefore ये Q जो है it's equal to 0. Therefore del E is equal to minus P into V2 minus V1. बस सारा आपके पास है, आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने हैं वैल्यू. तो P is equal to 10 minus 10 into V2 is equal to 10 and V1 is equal to 2. That is 10 minus 2. 10 minus 2 is 8. 10 minus 2 is 8. 8 into 10 is equal to 80. तो 80 यहाँ पे आपका आंसर आएगा. लीटर एटमॉस्फेयर. प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम का यूनिट लीटर है, therefore लीटर एटमॉस्फेयर. So what is the correct answer? The correct answer is option number. एक्सपैंड हो रहा है, that's why work done is negative. तो यहाँ से आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो. देखो एक्सपैंड हो रहा है मतलब आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए. नेगेटिव में एक ही है, सो दिस इज द आंसर. बस बात खत्म. कोई भी हमें कुछ भी नहीं करना है. अगर थोड़ा सा आपका दिमाग काम करेगा, एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन में वर्क डन इज नेगेटिव. तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस. सो दिस विल कम आउट टू बी नेगेटिव. नेगेटिव एक ही है, दैट्स व्हाई यू विल गेट दिस आंसर. क्लियर? तो AIMS 2000 यू कैन मतलब आप ट्रिक यूज कर सकते हो. एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए. वर्क डन इज इक्वल टू del E in case of what process? In case of adiabatic process. Adiabatic यहाँ पे लिखा है. बस this is equal to del E work done expansion. This should be negative. Negative एक ही है, therefore option number 1 is the right option. Clear? अच्छा, this question has been asked in AIMS 2017. I think this question has been repeated in NEET. फिर repeat भी हुआ है NEET. During adiabatic expansion, again expansion हो रहा है, मतलब work done should be negative. Of an ideal gas in vacuum. वैक्यूम में हो रहा है. तो देखो वैक्यूम में हो रहा है मतलब हमारे पास क्या है? एक्सपेंशन के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए FLOT क्या कहता है? del E is equal to Q minus P into V2 minus V1. That is del E, isn't it? For adiabatic process this Q is equal to 0. So Q is equal to 0. Q is equal to 0 in first. Q is equal to 0 in fourth. मतलब option number 2 and option number 3 they are not correct. ना नंबर सेकंड हमें del U की बात करनी. देखो एक्सपेंशन हो रहा है इन वैक्यूम. मैंने कल ही कहा था जब भी वैक्यूम की बात होगी तो del V is equal to 0. अगर del V 0 है तो this will be equal to del E will be equal to minus P into 0. P into 0 is equal to 0. That is del E is also equal to 0. यहाँ पे del U लिखा है. del U and del E they are same. So option number 4 is the correct option. Isn't it? वेरी गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. 2 बच्चों ने 2 3 सब बच्चे आंसर दिया करो. 3 बच्चों ने ही सिर्फ आंसर दिया इसका. अच्छा फैसल ने भी दिया. 4 बच्चों ने इसका आंसर दिया. सब बच्चे आंसर दे दो. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है नीट में. AIMS का ये क्वेश्चन है. दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. नाउ सी दिस इज अगेन आस्क्ड इन AIMS 2017. AIMS 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. बताओ मुझे फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. फॉर एन आइसो मैंने अभी आइसोलेटेड कल ही पढ़ाया था. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम. So see over here, isolated system क्या होता है? Isolated system is that system in which neither exchange of heat nor matter takes place.
मतलब जो भी हमारा सिस्टम है इट्स फर्स्ट अ क्लोज्ड सिस्टम, इजंट इट? तो उसके बाद जो ये वॉल होगी, जो बाउंड्री होगी, दिस विल बी इंसुलेटेड, दैट्स व्हाई एक्सचेंज ऑफ हीट एंड हीट विल नॉट टेक प्लेस। अगर यहाँ पे इंसुलेटेड वॉल होगी, दैट मींस एक्सचेंज ऑफ हीट विल नॉट टेक प्लेस। एक्सचेंज ऑफ हीट विल नॉट टेक प्लेस मींस Q will be equal to 0, isn't it? Q will be equal to 0. अगर Q will be not equal to 0, मानो इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल। अब बता, मैं यहाँ से हीट सप्लाई करता हूँ, क्या ये हीट लेगा? नहीं, विल नॉट टेक हीट। अगर ये हीट नहीं लेगा तो एक्सपेंशन कहाँ से होगा? नो। कंप्रेशन कहाँ से होगा? नो। दैट्स W is also equal to 0। यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, यहाँ पे Q will be equal to 0। ऑप्शन नंबर 1 will be the correct option। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। आधे बच्चे देते हैं आंसर, आधे नहीं देते हैं, आधे साइलेंट हैं। तो साइलेंट मत हो जाओ, वायलेंट हो जाओ, कर रही हो ना। दिस क्वेश्चन, ये आपके पास ये जो क्वेश्चन है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन एम्स 2017। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एम्स 2017 में पूछा गया है। होमवर्क देता हूँ ये क्वेश्चन आपको। डेल यू निकालना है। देखो, क्यू इज गिवन, क्यू इज गिवन, पी इज आल्सो गिवन। गैस एक्सपेंड हो रहा है बाय 10 मीटर क्यूब, मतलब V1 is equal to 1 and V